Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwal, and in the last session we completed our lap winding. In lap winding, we completed the winding diagram, back pitch, front pitch, and then we also saw how the parallel paths are created. How many number of brushes? Number of brushes equals to number of poles in a lap winding. Okay, we completed this. Then we saw that if in a lap winding there are more number of parallel paths. So more number of parallel paths if I have in a machine, then with time magnetic asymmetry occurs. क्यों occur होती है magnetic asymmetry? क्योंकि there is some movement of conductor in the slots, there is some difference in the flux due to the air gap, and also जो मेरे poles होते हैं stator में, due to some vibration of the machine, the poles also get de-aligned. तो उससे मेरा थोड़ा magnetic flux change होता है, जिसकी वजह से मेरी create होती है magnetic asymmetry. Now due to that magnetic asymmetry there is unequal potential, unequal voltage induced in the coil. और जब वही coil जब हमारी short circuit होती है via a brush, ठीक है, जब दोनों ब्रश से उसमें करंट जाता है, then there is a huge circulating current in the front. तो जब वो फ्रंट में उस करंट आता है, then it comes to the brush and it creates spark and my brush are damaged, my commutation is not successful. So first we will see that what is the problem, then we will see the solution. Okay, now for solution, what we use? We use equalizer rings. What are equalizer rings? Equalizer rings are solid copper rings which provide least resistance for the circulating current to flow. So here, suppose this is my brush. See the brush on segment number 7 and the brush on segment number 1. Okay, so these two brushes, okay, segment number 7 and segment number 1. यहाँ पे suppose in under this north pole there is first conductor and under this north pole there is 13th conductor. Okay, both are conducting current in same direction, and via this brush and here see this brush. Okay, so they are connected together. Now if the voltage induced in the conductor number 13 and the conductor number 1 are different, okay, so if the potential induced in the conductor number 1 and conductor number 13 is not same, then via this brush there will be a circulating current, and जब ये current मेरा commutator के through brush से आएगा तो then it will create spark, it will, and my brush will be damaged. So what I want that this unequal potential should not create circulating current in my commutator or my brush. तो मैं क्या use करूँगा? I will use my equalizer rings. So what are my equalizer rings? Equalizer rings are the solid copper rings which provide least resistance path for the current to flow between the equipotential points. वैसे तो वो potential points equipotential होने चाहिए थे, but due to magnetic asymmetry they are not equipotential. That's why we need equalizer rings. Okay, now see, equalizer rings are solid copper rings. Solid copper rings provide least resistance to flow of circulating current. तो circulating current मेरा ब्रश से पास ना होके मेरा इक्वलाइजर रिंग से ही पास हो जाएगा और मेरा फ्रंट एंड में कम्यूटेटर पे कोई भी करंट नहीं आएगा. ठीक है, तो वाई इक्वलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड? दे आर रिक्वायर्ड सो दैट ड्यू टू अनबैलेंस मेरे ब्रश में कोई भी करंट फ्लो ना करे. द इक्वलाइजर रिंग शुड बी कनेक्टेड टू द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. जहां पे मेरा इक्विपोटेंशियल होता है वहीं पे कनेक्ट करेंगे हम इक्वलाइजर रिंग को. अब प्लस वी वाली कॉइल पे और माइनस वी वाली कॉइल पे तो हम उसे कनेक्ट नहीं करेंगे. इट विल बी ए डेड शॉर्ट सर्किट. हम करेंगे उसे जहां पे जिन जिन पॉइंट्स पे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं. लाइक इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, तो ये कंडक्टर नॉर्थ पोल का और ये कंडक्टर, दे आर बोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम नॉर्थ पोल इफ इट इज ए 4 पोल मशीन. ओके, सो ये भी नॉर्थ पोल के अंदर है, ये कंडक्टर भी नॉर्थ पोल के अंदर है. दैट मीन्स दीज टू आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. सो हम इन दोनों के बीच में करेंगे इक्वलाइजर रिंग को कनेक्ट सो दैट दे बोथ ऑफ देम आर मेंटेन्ड एट इक्वल पोटेंशियल. और इनके जो फ्रंट एंड में यहाँ पे जो ब्रश लग रहा है, जो ब्रश से करंट कलेक्ट हो रहा है, उस ब्रश के थ्रू कोई भी सर्कुलेटिंग करंट पास ना करे. ओके, these are connected at the back end of armature to bypass the circulating current and protect the brushes. Now comes the question, how many equalizer rings are required? Number of equalizer rings required are number of coils upon my number of poles. Okay, so every north pole, like if it is a north pole, okay, north, so यहाँ से magnetic field आएगा and it will come back here, so here will be south. ठीक है,
तो इसी पोल को हम एक पोल पेयर भी बोल देते हैं, और यू कैन से नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स। फाइन, दीज आर द नंबर ऑफ इक्विलाइजर रिंग्स। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहाँ पे लोकेट होते हैं हमें ये और देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट रिमेंबर वन थिंग, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर लोकेटेड एट, if my first conductor is first slot, located at twice the pole pitch, that means 1 plus मेरी पोल पिच क्या थी यहाँ पे 24 स्लॉट्स 4 पोल, मेरी पोल पिच क्या आई पर पोल क्या हुआ 6, so 1 plus में 2 into 6 12, that equals to 13, means conductor at 1 first slot and conductor at 13th slot are at equipotential। तो मेरे को उनके बीच में लगानी पड़ेगी इक्विपोटेंशियल इक्विलाइजर रिंग, सॉरी इक्विलाइजर रिंग। ठीक है, ओके, सो हियर यू कैन सी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ट्वाइस द पोल पिच डिस्टेंस। अच्छा, एक पोल पिच कितनी होती है इन एनी पोल मशीन, मैंने 2 सेशन पहले हमने किया था, इन एनी पोल मशीन एवरी पोल, इन एनी पोल मशीन वेदर 2 पोल 4 पोल 6 पोल 8 पोल, डजेंट मैटर कि कितने पोल की मशीन है, एवरी पोल हैज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। 2 पोल के पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और वैसे भी इफ यू सी, इफ दिस इज अ वेव फॉर्म आफ्टर 360 डिग्री देयर इज इक्विपोटेंशियल, एंड सपोज इज लाइक दिस इज वेव फॉर्म, सो आफ्टर 360 डिग्री 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री देयर आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। बस उसको आप वाइंडिंग में भी देख सकते हो और वेव फॉर्म से भी देख सकते हो। सो वेयर आर माय इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स लोकेटेड 1 plus twice the pole pitch। ठीक है, now we will see our winding diagram। okay, in the winding diagram now we have to place the equalizer rings। okay, so in this diagram you can see this is my first conductor, this is my first conductor, ये मेरा first conductor है ये वाला, and it is coming here, तो मेरा ये point, and where is my 13th conductor, my 13th conductor is here। okay, so this is my 13th conductor, it is going like here। so इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरी एक आएगी इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग क्या होती है, इट इज नथिंग बट ए सॉलिड कॉपर रिंग विच प्रोवाइड्स लेस रेजिस्टेंस। सिमिलरली सपोज दिस इज माय थर्ड कंडक्टर, थर्ड कंडक्टर ये कहाँ पे है यहाँ पे, सो थर्ड प्लस 2 पोल पिच, 3 प्लस में 2 इंटू पोल पिच क्या होगा मेरा 3 प्लस में 2 इंटू 6 दैट विल बी 15। तो 3 प्लस 15, 15 कहाँ है मेरा, here is my 15 ये, so this point and 3 this point are, these are equipotential points, so there will be an equalizer ring here। similarly एक यहाँ से और यहाँ से भी एक equalizer ring होगी, यहाँ से और यहाँ पे भी एक equalizer ring होगी, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक equalizer ring होगी, and एक लास्ट इक्विलाइजर रिंग मेरी यहाँ से और यहाँ पे होगी। फाइन, आप देख सकते हो, अगर ये पॉइंट आप देखोगे तो ये कितना कौन सा पॉइंट है 11th, so 11 plus 2 times pole pitch, that is 11 plus में 2 times 2 into 6 it is 23। तो 23 कौन सा मेरा ये, so this and this point 15th वाला they are at equipotential, sorry not 15th वाला 11th वाला जहां से मैंने कैलकुलेट किया है 11th is मेरा here, so from here to this, so this is also my equipotential। so how many equalizer rings are required, see here 1 2 3 4 5 6, उसके बाद तो ये 6 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे। ठीक है, ये एक्स वाई जेड जो आपको यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं वाई जेड एक्स, ये दीज आर द सेम पॉइंट्स एक्स वाई जेड, बस मैंने डायग्राम के लिए, डायग्राम को सिंपल दिखाने के लिए यहाँ से वहां दिखाया था, वो जब हमने लेफ्ट वाइंडिंग की थी, जब हमने स्लोली ये समझा था। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विलाइजर रिंग्स रिक्वायर्ड 6 है, और वैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम 24 coils by 4 poles, that is equals to 6 equalizer rings। I hope now you are clear with the concept of equalizer rings। requirement क्या होती है, if there is a unbalance in the machine then we require our equalizer rings। और connect कहाँ पे होती है, these are connected between the equipotential points on the back end of armature, क्योंकि फ्रंट एंड में तो हमारा कम्यूटेटर है, हमको कम्यूटेटर और ब्रश को ही तो बचाना है उससे। ठीक है, now we will see how symmetry, how we get symmetry in a double layer winding। okay, now let's see this। earlier
हमने पढ़ा था दैट अगर हम एक आर्मेचर पे अगर हम सिंगल लेयर वाइंडिंग करते हैं, सो व्हाट वाज द डिसएडवांटेज? इफ 30 coils are there, 30 coils means 60 coil side, that means it requires 60 slots, 60 slots और फिर 60 टीथ भी होंगे, क्योंकि आर्मेचर पे अगर एक स्लॉट बनता है तो साथ में एक टीथ भी बनता है, ठीक है। दैट मीन्स द आर्मेचर साइज वेरी हाई and it makes the motor or generator or our machine uneconomical. So we use double layer winding, in which double layer winding में क्या होता है? Number of slots is equals to number of coil side by 2 or number of coils directly. So this is my double layer winding. For perfect symmetricity in a double layer winding, what we require कि अगर एक कॉइल का एक पार्ट ऊपर आता है, दैट मीन्स इन दिस सी हेयर जो थर्ड कंडक्टर है एक फोर्थ कंडक्टर है, डेफिनेटली थर्ड कंडक्टर को थोड़ा ज्यादा फ्लक्स कट करेगा और फोर्थ को थोड़ा कम करेगा, क्योंकि जो भी फ्लक्स होगा मेरा वो शॉर्टेस्ट पाथ से यहाँ से निकलना चाहेगा. सो मोर फ्लक्स विल गो थ्रू हेयर बट लेस फ्लक्स विल गो थ्रू हेयर. देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस. तो अगर मेरे को परफेक्ट सिमेट्रिक चाहिए इन ए डबल लेयर वाइंडिंग, व्हाट आई रिक्वायर, अगर मेरी एक कॉइल है, सपोज दिस इज माई वन कॉइल and if it is my coil side, there are two coil sides, suppose this is my third number and the second coil side is my suppose 10th number. तो अगर मेरा एक coil side मेरा डबल लेयर में ऊपर है, then the other side should be downward. एक coil side अगर मेरी ऊपर है तो मेरी दूसरी साइड नीचे होनी चाहिए. Got it? So see in the diagram, अगर मेरा थर्ड एक coil side है मेरी थर्ड पे, अगर ये ऊपर है तो मेरी सेकंड coil side आनी चाहिए नीचे, like this 10. देन अगर एक फिफ्थ ऊपर है तो 12th आनी चाहिए नीचे, एंड 7th ऊपर है तो 14th आनी चाहिए नीचे, लाइक दिस. तो फिर मेरी आएगी परफेक्ट सिमेट्रिसिटी. क्योंकि सपोज मैं हाइपोथेटिकली बोलता हूँ आपसे, अगर मेरा ऊपर में फ्लक्स कट कर रहा है 5 और नीचे में फ्लक्स कट कर रहा है 0.95, ठीक है. अगर मैं एक ऊपर रखता हूँ, मैंने 3 को रखा ऊपर और मैंने 10 को रखा नीचे, तो इसी कॉइल पे यहाँ फ्लक्स ने कट किया 5 ने, यहाँ करा 0.95 ने. व्हाट इज टोटल फ्लक्स? 1.95. टोटल 1.95 फ्लक्स ने कट किया एक कॉइल को, ठीक है. नाउ अब मैं देखूं 5 ऊपर है एंड 12 इज नीचे, सो 5 पे कट किया फ्लक्स 5 ने और 10 पे कट किया 0.95 ने, तो यहाँ पे भी टोटल 1.95, दैट मीन्स इक्वल. इन केस इफ आई डिजाइन अ वाइंडिंग लाइक दिस, सपोज लेट मी ड्रॉ a neat diagram. Suppose if this is my winding, okay, so मैंने suppose this is my third and then I connected 10th here, I connected 5th here, I connected 12th here, okay. तो थर्ड पे कितना फ्लक्स कट करेगा मेरा? ये तो ऊपर वाली लेयर में फ्लक्स कट कर रहा है 5 और 10th पे भी 5. सो इन दिस कॉइल माय टोटल फ्लक्स कट विल बी 5 + 5 इक्वल्स टू 2.5. बट आप नीचे वाली लेयर में देखोगे डबल लेयर की, इफ यू सी इन द बॉटम लेयर, तो इसमें क्या है मेरा 5 और इसमें भी क्या है मेरा, इसमें होगा मेरा 0.95, क्योंकि ये बॉटम की लेयर है, इसमें भी होगा 0.95, क्योंकि ऊपर वाले कंडक्टर को ज्यादा फ्लक्स कट करेगा, नीचे वाले को थोड़ा सा कम, नेग्लिजिबली स्मॉल बट थोड़ा सा कम फ्लक्स कट करेगा नीचे वाले कंडक्टर को. सो 0.95 एंड 0.95 इट विल बी 1.85. दैट मीन्स देखो इसमें तो 2.5 आया, इसमें आया 1.85. सो देयर विल बी asymmetry, or this asymmetry will lead to unequal voltage, unequal potential at the equipotential points, and it will lead to spark. My brushes will be damaged and my commutation process will be affected. Okay, so for the perfect symmetry what we have to do, एक कंडक्टर अगर स्लॉट में ऊपर आएगा then my second conductor should be in the bottom of the other slot. एक अगर ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, लाइक दिस, सो दैट यूनिफॉर्म फ्लक्स कट्स ऑल द कॉइल्स. ओके, सो हमें पता लग गया फॉर प्रॉपर बैलेंस एक कॉइल साइड ऊपर होनी चाहिए, एक कॉइल साइड नीचे, एंड दिस इज अचीव्ड बेस्ट बाय कीपिंग अवर YB एंड YF एज ऑड वैल्यूज. अगर YB और YF इवन हो, इनमें से कोई भी, तो मेरा कहीं ना कहीं पे एक कॉइल के ऐसी आएगी जिसकी दोनों कॉइल साइड दोनों ऊपर के स्लॉट में प्लेस होंगी. इफ एनी ऑफ माई YB और YF इज इवन और इफ बोथ आर इवन, सो देयर विल बी एन इम्बैलेंस. ठीक है, फॉर प्रॉपर बैलेंस वन कॉइल साइड
should be at top and another should be at bottom. Okay. By selecting odd YB and YF only, we only get symmetrical shape. By even number, we do not get symmetricity. Okay. Now, मैंने बताया था आपको वाइंडिंग्स किस तरह की होती हैं, कंसंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड में कौन सी थी, ग्रामे रिंग, जिसको अब कोई भी यूज नहीं करता, इट इज ऑब्सोलीट, क्योंकि इसमें कंडक्टर्स, हाफ कंडक्टर यूटिलाइज होते हैं और हाफ कंडक्टर इनएफिशिएंटली उसमें जस्ट पड़े हुए होते हैं. ओके, सो concentrated and this is my distributed and this is my drum winding. Distributed में एक ग्रामे रिंग and one is my drum. ड्रम में एक लैप, एक वेव और एक मेरी फ्रॉग लेग होती है, तो मिक्स बोल दो या फ्रॉग लेग या फिर लैप वेव मिक्स. ओके, हमने लैप वाइंडिंग अच्छे से कवर कर ली है. नाउ कम्स द वेव वाइंडिंग. मैंने आपको उस जब हम लैप वाइंडिंग कर रहे थे, इवन देन आई ऑल्सो टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि अगर हम YB और YF है, अगर हम YF को फ्रंट में सब्ट्रैक्ट ना करें तो मेरी वाइंडिंग कैसी बन जाती थी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो मेरी वाइंडिंग ऐसे बन जाती थी एंड इट इज नथिंग बट इट इज द वेव वाइंडिंग. अगर मैं YF को सब्ट्रैक्ट करता हूं फ्रंट में, देन इट बिकम्स लाइक दिस, लाइक दिस, देन इट बिकम्स ए लेफ्ट वाइंडिंग. बट अगर मैं उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करता, देन इट बिकम्स वेव वाइंडिंग. So my wave winding is also called a re-entrant type winding, क्योंकि ये वाइंडिंग हमेशा स्टार्टिंग से फिर से री एंटर करती है, like YB and then in front we also add YF, then again enters, and it is also called my series winding. Why series winding? Because there are only two parallel paths in a wave winding. But lap में क्या है, ज्यादा parallel paths होते हैं, A equals to P. So lap is often also called as parallel winding. Okay. Now see, if these are my slots, मैंने आपको बताया हुआ जैसे first slot, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. So these are my slots. If my YB equals to 5, YF equals to 3. बैक पिच मेरी 5 है और फ्रंट पिच मेरी क्या है, 3. एंड इन वेव वाइंडिंग आपको ही पता है, फ्रंट में सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम उसे ऐड करते हैं तो बनती है वेव वाइंडिंग. सपोज फर्स्ट कंडक्टर इन फर्स्ट, देन 1 + 5 आया 6, तो यहां से मेरा आ गया ये इन द 6. नाउ 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17. नाउ इट इज 18 19 20 21 22 23 24, सपोज 24. तो 17 + 5 22. ओके, 22 + 3 22 + 3 दैट मीन्स 25. और 25 तो मेरा यहाँ पे आएगा नहीं, 25 कहाँ पे आएगा, घूम के वापस यहाँ पे. ओके, इन दिस वे द वाइंडिंग इज कंप्लीट. सो इन माय वेव द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज 2. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2 सर्किट और ए डबल सर्किट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था जस्ट एम्पिरिकल, मैंने ऐसे कुछ भी 5 3 2 नंबर से कर दिया था. बट इनफैक्ट रियल में अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है YB प्लस में YF/2 इज इक्वल टू Z प्लस माइनस में 2/P. ओके, सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट आवर YB एंड YF इन वेव वाइंडिंग. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एम्पेरिकली डिजाइंड. ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस हिट एंड ट्रायल किस में जाके मेरी वाइंडिंग इजीली कंप्लीट होती है, यूजिंग दैट ओनली. सो इन ए सिंप्लेक्स वेव मीन्स ओनली one set of winding, that is my simplex wave. So wave में तो वैसे भी only 2 parallel paths, wave winding में 2 parallel path होते हैं हमेशा, always there are 2 parallel paths. Okay, so it is simplex wave, Z/2. For duplex wave there are 2 set of such windings, means मैंने इसको आधा आधा कर दूंगा, Z/4, Z/4. So number of paths are 2 times, पहले कितने पाथ थे, 2. मेरा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर फॉर डुप्लेक्स वाइंडिंग M, और वेव में 2 तो होते ही हैं, सो इट विल बी 4. 1 2 3 4. देयर आर 4 पैरेलल पाथ्स. सो ठीक है, A इक्वल्स टू 2M. ओके, आई होप यू गॉट इट. व्हाट इज माय YB प्लस YF/2 इज इक्वल्स टू Z प्लस माइनस 2/P. ओके, so this is empirical design. And YB minus my YF equals to plus minus 2M. This was for lap. It is also useful here
बट इन लेफ्ट वाइंडिंग इफ वाई बी इक्वल टू वाई एफ हो जाता है अगर लेफ्ट वाइंडिंग में, तो हमारा क्या हो रहा था, अगर मेरा लेफ्ट वाइंडिंग में वाई बी इक्वल टू वाई एफ था तो वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ गई, देन बैक यहीं पे आ जाती है क्योंकि वाई बी इक्वल टू वाई एफ। तो 1 + 7 8 हुआ और 8 - 7 क्या हो जाएगा वापस 1। सो वाइंडिंग वॉज नॉट पॉसिबल इन लैप फॉर वाई बी इक्वल टू वाई एफ। बट इन केस ऑफ वेव, वेव में क्या है मेरा like this reentrant type. Okay, so here yb equals to yf हो सकता है, there is no problem. Okay, winding is progressive और retrogressive वो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो yb equals to yf in both these cases, in both these equations winding is possible. Okay, now what is yc? It is the commutator pitch. commutator pitch क्या होती है कि एक कोयल के दो सक्सेसिव कोयल्स के जो एंड्स हैं वो जो कम्यूटेटर पे आके मिल रहे हैं वहां पे उन दोनों के बीच में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। सो कम्यूटेटर पिच इक्वल्स टू कम्यूटेटर सेगमेंट्स प्लस 1 अपॉन में नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल, और यू कैन से नंबर ऑफ पोल्स। सपोज अगर मेरे कम्यूटेटर पे सेगमेंट मेरे हैं 12, सो 12 + 1/4 जो इसके नियरेस्ट इंटीजर नंबर होगा दैट विल बी माई commutator pitch. Okay, now in simplex wave only two parallel paths are there. अगर मेरी कोई सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है तो उसमें सिंपल 2 पैरेलल पाथ होंगे। अगर मेरी कोई डुप्लेक्स वेव हुई तो मीन्स 2 such sets are there, that means 2 into 2 there will be 4 parallel paths. There will be 4 parallel paths. Okay, and these 4 parallel paths in a duplex wave, but in a simplex wave say both paths are running simultaneously under any poles. Means there are only 2 paths. Means जैसे हमने यहाँ पे जब हमने लैप की वाइंडिंग की थी तो उसमें मेरा करंट आके पहले गया था इधर इन दिस ब्रश एंड देन हेयर इन दिस ब्रश, और यहाँ से फिर करंट मेरा फिर डिवाइड हुआ, यहाँ से करंट फिर डिवाइड हुआ, तो ये एक नॉर्थ पोल में था और ये दूसरे नॉर्थ पोल में था। दैट्स वाई देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ मैग्नेटिक एसिमेट्री कि अगर मेरे इस पोल के फ्लक्स और इस पोल के फ्लक्स में कुछ डिफरेंस है तो मेरा इन दोनों पॉइंट में के बीच में जो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है ये डिफरेंट पोटेंशियल में होंगे। देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट इन द फ्रंट इन द ब्रश एंड इन कम्यूटेटर। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या लगाई थी, इक्वलाइजर रिंग। बट इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग देयर आर ओनली 2 पैरेलल पाथ्स। दैट मीन्स एक पोल के अंदर सपोज दिस एक ही पोल के अंदर मेरी एक कॉइल होगी एंड हेयर देयर आर 2 पैरेलल पाथ्स और एक ही ब्रश है मेरा कलेक्ट करने वाला एंड दिस इज माई हेयर दिस इज माई कम्यूटेटर, दिस इज माई कम्यूटेटर, यहाँ से करंट कलेक्ट कर रहा है। सो ऑल द कंडक्टर्स रन साइमल्टेनियसली अंडर ए पोल। ठीक है, सो बोथ द कंडक्टर्स जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है दे आर साइमल्टेनियसली अंडर ए सेम नॉर्थ पोल, और इट विल बी समटाइम्स इट विल बी लाइक वन इज अंडर नॉर्थ वन इज अंडर साउथ। ठीक है, बस ये सो इन दिस माइनस प्लस इस तरीके का हो जाएगा and there will be net voltage, so no circulating current in this wave winding. That condition जो मेरी लेफ्ट में हुई थी like this north pole, this south pole, this north pole, वहां पे क्या हुआ था मेरा एक बार, जैसे कि यहाँ से ये ब्रश इससे करंट कलेक्ट कर रहा था एंड देन यहाँ पे भी एक वाइंडिंग थी और मेरा एक ब्रश उससे भी करंट कलेक्ट कर रहा था और ये दोनों मेरे मीट कर रहे थे। That's why the problem of circulating current was there. But in wave winding this condition will never happen. Only 2 parallel paths. 2 पैरेलल पाथ्स कैसे, इसी ब्रश से निकला करंट, इसी ब्रश से करंट निकला मेरा और दिस देयर इज सम वाइंडिंग और इस किसी और वाइंडिंग में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है। तो दोनों के दोनों जो यहाँ पे मेरी ये होंगी वायर्स, दोनों के दोनों कंडक्टर्स रन्स अंडर द सेम पोल, और जब मेरे सेम पोल के अंदर रन करेंगे तो मीन्स दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम फ्लक्स, सो नो मैग्नेटिक एसिमेट्री। ओके, यू कैन ऑल्सो रीड दिस स्टेटमेंट। In simplex wave, both paths are running simultaneously under any pole, so no unbalance or equal unbalance. अगर मेरा फ्लक्स थोड़ा चेंज हुआ तो वो दोनों कंडक्टर के लिए चेंज हो गया, दोनों कंडक्टर पे अनइक्वल फ्लक्स लग रहा है, फाइन। और अगर चेंज नहीं हुआ तो इट्स बेटर। Both the path face same and unbalance, either 100 90 98 98 98। तो मैं जितना मतलब अगर इस पोल के फ्लक्स में कुछ चेंज हुआ है तो वही चेंज इस कंडक्टर पे भी लगेगा, वही चेंज इस कंडक्टर पे भी लगेगा। So there will be no unbalance, so no equalizer rings are required. If in MCQ it is asked that equalizer ring कहाँ पे required होती हैं, तो they are required in lap, क्योंकि लैप में ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। एक पाथ यहाँ पे होगा, एक पाथ इस नॉर्थ में होगा, दोनों ब्रश से कनेक्ट होंगे। तो अगर इस नॉर्थ के अंदर
अलग वोल्टेज इंड्यूस हुई है, इस नॉर्थ के अंदर अलग वोल्टेज इंड्यूस हुई है, तो मेरा फ्रंट एंड पे क्या आएंगे, सर्कुलेटिंग करंट्स। और उसको सही करने के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, पीछे एक इक्वलाइजर रिंग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स आर एडवांटेजेस इन वेव वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि वेव में इनहेरेंटली सिर्फ दो पैरेलल पास होते हैं, और इफ यू रिक्वायर हाई करंट, सो व्हाट यू नीड मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स। क्योंकि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स यूज करने के बाद नंबर ऑफ पैरेलल पास कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पास इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m। m इज माई मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। अगर ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग है तो मेरा m2 होगा, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है तो मेरा m3 होगा, लाइक दैट। ओके, अगर मेरी कोई स्मॉल रेटिंग मशीन है, स्मॉल रेटिंग मीन्स लेस पावर मशीन है, तो उसमें मेरी सिंप्लेक्स वेव होगी। अगर हाई रेटिंग की मशीन में जाएंगे तो हाई रेटिंग मीन्स हाई करंट इज रिक्वायर्ड। हाई करंट मीन्स वी नीड मोर पैरेलल पाथ, और मोर पैरेलल पाथ के लिए हम कहाँ जाएंगे, वी विल टेक द लैप वाइंडिंग इनटू कंसिडरेशन। ओके, y is equals to, and this is equals to my yb plus my yf by 2. Okay, this should be an integer. Now we will find yb and yf in case of a wave winding. You will see in here in wave winding we have problem of integers. Okay, see हम देखेंगे कैसे। Suppose it is a 60 slots, और 60 slots में क्या रहेंगे, 60 कंडक्टर्स, 4 पोल, 15 स्लॉट। ठीक है, पहली बात, अगर 15 स्लॉट हैं मेरे और मेरी 60 कॉइल साइड्स हैं या फिर 60 कंडक्टर्स हैं, तो पर स्लॉट कितने कंडक्टर आएंगे, 4 कंडक्टर पर स्लॉट। इसका मतलब मेरे आर्मेचर कैसा होगा, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4, लाइक दिस 1 2 3 4। हर स्लॉट में मेरे 4 कंडक्टर्स होंगे, फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ सी वन मोर थिंग, व्हाट इज माय पोल पिच हियर। पोल पिच क्या होती है मेरी, नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ कंडक्टर्स अंडर ए पोल, दैट इज 60/4 इज इक्वल्स टू 15 is my pole pitch. Fine. Now I have to find yb and yf. ya is equals to क्या होता है मेरा, yb plus yf by 2 is equals to z plus minus का 2 by p. z क्या मेरा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और यू कैन से नंबर ऑफ स्लॉट्स, क्योंकि मैं एक स्लॉट में जिसमें एक कॉइल साइड को प्लेस कर रहा हूं, मैं उसको एज ए सिंगल कंडक्टर काउंट कर रहा हूं। ओके, पर स्लॉट 1 कंडक्टर। ओके, नाउ सी इट इज, मेरा z क्या है, 60 प्लस माइनस का 2 अपॉन में 4। इट विल बी आइदर 62/4 और इट विल बी 58/4। ओके, इट इज 62/4 और इट्स 58/4, दैट इज इक्वल्स टू 15.5 और 14.45, 14.5 और 15.5। नाउ no one is integer but I need integer. ओके, तो ये इंटीजर नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहां से मेरा yb प्लस में yf क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, सपोज मैं ले रहा हूँ 14.5 into 2, दैट विल बी 29। सो इट इज माई ऑड नंबर, और ऑड नंबर मेरा कब आएगा, व्हेन ऑड प्लस इवन होगा, या फिर इवन प्लस ऑड होगा, तभी मेरा एक ऑड नंबर आएगा। और अगर मेरा कोई भी yb या yf मेरा कोई भी एक अगर इवन है, या फिर अगर मेरे दोनों भी इवन है, सो माई वाइंडिंग विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, yb और yf दोनों और चाहिए, उसके लिए तो मेरा ये सूटेबल नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन डू, जो इसने मुझे 60 कंडक्टर्स दिए हैं, मैं उसको कर सकता हूं, या तो मैं 60 की जगह यूज कर लूं, 62 यूज कर लूं, या फिर मैं कर लेता हूं 58 यूज। अगर मैं 62 यूज कर लेता हूं तो 62 प्लस माइनस 2 अपॉन 4, ये आ जाएगा मेरा 21 आ जाएगा, या फिर आ जाएगा 20। अगर मैं 58 यूज कर लेता हूं तो 58 प्लस माइनस 2 अपॉन 4, ये आ जाएगा मेरा, तो आ जाएगा 15, या आ जाएगा मेरा 14। इन दोनों केसों में मेरा ये एक इंटीजर आ जाएगा। हियर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, 62 प्लस माइनस 2 मतलब 64/4 या फिर 60/4, दैट इज या तो 15 आएगा या फिर आएगा मेरा 16। ठीक है, बट नाउ इट इज कंप्लीट इंटीजर, या तो 15 आएगा या 16 आएगा, और या फिर 14 आएगा या फिर 15 आएगा। अगर मैं 58 कंडक्टर यूज करूं या फिर मैं 60 कंडक्टर यूज करूं। नाउ जो मेरा आर्मेचर है उसके जो स्लॉट्स हैं वो किसके लिए डिजाइंड है, द स्लॉट्स ऑफ माई आर्मेचर आर डिजाइंड टू अकोमोडेट 60 कंडक्टर्स, दैट मीन्स 4 कंडक्टर इन ईच स्लॉट। ठीक है,
60 कंडक्टर्स आएंगे। अगर मैं यहाँ पर 62 कंडक्टर लेके चलता हूँ, 62 कंडक्टर लेके चलता हूँ, तो जो 2 कंडक्टर एक्स्ट्रा होंगे मैं उन्हें कहाँ प्लेस करूंगा, उनके लिए तो जगह ही नहीं है। सो आई कैन नॉट टेक 62 कंडक्टर्स, बट आई कैन टेक 58। अगर मैं 58 लूंगा तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक स्लॉट होगा मेरा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कंडक्टर आएंगे, बस आने 4 चाहिए थे लेकिन इसमें 2 आ गए, बट माई वाइंडिंग विल बी easy to do. Now my YB plus my YF will be either 14 plus, it will either 28 or YB plus my YF is equals to 30। ठीक है, अगर मैं 58 कंडक्टर लेके चलता हूं तो मेरा वाइंडिंग करनी मेरी हो जाएगी मुझे इजी, फाइन, मेरी वाइंडिंग तो हो जाएगी, बट देयर विल बी ए प्रॉब्लम। नाउ इन दिस रोटर सपोज हेयर देयर आर 4 कंडक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे 4 कंडक्टर हैं, बट हेयर देयर आर ओनली, इन दिस स्लॉट देयर आर ओनली 2 कंडक्टर्स। उधर तो मेरे 4 कंडक्टर्स थे, बट हेयर देयर आर ओनली 2 कंडक्टर्स। इसका मतलब इधर मेरा कम वेट है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। दैट मीन्स देयर विल बी ए मैकेनिकल एसिमेट्री एंड विद इन 2-3 years, 2-3 साल में माई मशीन विल बी डैमेज्ड। This causes imbalance in weight of rotor. Machine may show problem in 2-3 years. More wear and tear on one side of the bearing. Weight different है तो wear and tear आएगा bearing पे, and my machine will be damaged. Now 62 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 62 लूंगा तो मैं जो 2 एक्स्ट्रा कंडक्टर है उनको कहाँ प्लेस करूँ। ओके, तो ये मेरी मजबूरी है, I have to take only 58 कंडक्टर्स। अब 58 अगर मैंने ले लिए, सपोज 2 कंडक्टर जो जगह बची थी, what can I do? I will use a different thing here that is called dummy coil. Dummy coil, dummy coil क्या होती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉपर बार लो, इसको 2 एंड से कट करो, जितनी आर्मेचर की लेंथ है उतना कट करो, इंसुलेट कर दो पूरा का पूरा, और इंसुलेट करके यहाँ पे प्लेस कर दो 2 कॉपर बार, एंड दैट आर कॉल्ड डमी कॉइल। डमी क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज इंड्यूस करने में या करंट को फ्लो करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रही है, जस्ट दे विल बैलेंस द वेट ऑफ द रोटर। उसकी वजह से मेरा मैकेनिकल इम्बैलेंस नहीं होगा, मेरे बेरिंग के ऊपर कोई भी ज्यादा वियर एंड टियर नहीं आएगा। सो टेक कॉइल, कट, इंसुलेट, डू नॉट कनेक्ट एनीवेयर, पुट देम इन स्लॉट टू बैलेंस द वेट ऑफ रोटर। तो मेरा डमी कॉइल आ जाएगा, उससे मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन डू द वेव वाइंडिंग। ठीक है, वेव हमारा मोर एडवांटेज क्या है वेव का, एक एडवांटेज तो ये है कि इसमें वोल्टेज हाई रहती है, क्योंकि ये एक सीरीज वाइंडिंग है, तो पूरी की पूरी सीरीज में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज हाई मिलती है हमें, फर्स्ट थिंग, बट करंट साइमल्टेनियसली करंट क्या होता है मेरा, लो। ओके, बट एक एडवांटेज क्या है मेरा, इसमें मुझे इक्वलाइजर रिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें इम्बैलेंस नहीं होता। इक्वलाइजर रिंग्स रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब कॉपर सेविंग, मेरा कॉपर बच जाता है। ओके, सो माई कॉपर सेविंग विल बी मोर, फाइन, मोर एडवांटेज, नो नीड ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स एंड लेस। और जब इक्वलाइजर रिंग्स नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, तो कम्यूटेशन की भी कम प्रॉब्लम है, प्लस ओनली 2 पैरेलल पाथ्स, सो ओनली 2 ब्रशेस आर रिक्वायर्ड। और नंबर ऑफ ब्रश कम हुए तो मेरा फ्रिक्शन भी कम हुआ और मेरा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम हुई, बिकॉज ब्रश ऑलवेज रिक्वायर्स मेंटेनेंस। बट for big generators where the current rating required is high, we do not have any option and we have to go for lap winding only. So we have completed our wave winding and equalizer rings. We will see you in the next class and we will do some questions on the basis of windings. And जितने भी टॉपिक हमने किए हैं अभी तक, इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल्दो हमने एग्जाम पर लेकर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट स्टिल वी विल सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So thank you for now.